السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ بہو بھی جانتے ہو اس وقت ہم کلاس 8 میں ہیں۔ ہمارا سبجیکٹ اردو ہے اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یا مضمون جو ہے وہ ہے میرا وطن۔ عزیز طلباء طالبات، یہ نظم جو ہے مامن شفیع نیر کی لکھی ہوئی نظم ہے میرا وطن۔ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے وطن کے بارے میں ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس نظم کا خلاصہ، مشکل الفاظ اور تشریح وغیرہ جو ہے ہم انشاءاللہ آج اس کی کریں گے۔ تو نظم کچھ یوں ہے: یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا وہ طوطا وہ مینا وہ مور، وہ کوئل وہ بلبل وہ کمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ گلے وہ میوے وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمینیں وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، پہاڑوں کا منظر بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی ہو خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گما، یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، خلاصہ کچھ یوں ہے اس نظم کا۔ نظم میرا وطن میں شاعر وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ہر طرح طرح کے خوش نما اور خوش آواز پرندے ہیں، جھیلیں، جھرنے اور دریا ہیں، سرسبز جنگل اور پہاڑ ہیں۔ گویا میرا وطن بہت خوبصورت ہے جس کو قدرت نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وطن میں طرح طرح کے اناج، میوے اور ترکاریاں اگتی ہیں، یہاں کی زمین زرخیز ہے۔ شاعر وطن کے پہاڑوں اور جنگلوں، ندی نالوں اور چشموں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا ہے، یہ جنت سے کم نہیں اور ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ مشکل الفاظ ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: کمری، کمری فاختہ کی طرح کا ایک پرندہ ہے، اس کی آواز میں گونج ہوتی ہے۔ چکور، تیتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر چاندنی میں پھدکتا نظر آتا ہے۔ بن کہتے ہیں جنگل یعنی کہ دشت، صحرا۔ سرسبز ہے، ہرا بھرا، تر و تازہ۔ غلہ، اناج۔ میوے، خشک پھل۔ گلکاریاں، نقاشی کرنا، گل بوٹے بنانا، پھول تراشنا۔ سیراب، پانی سے بھرپور، تر و تازہ، سینچا ہوا۔ زرخیز، مانا جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ باغ عدن، جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا۔ دلکش، دل کو اپنی طرف کھینچنے والا، دل کو لبھانے والا۔ ترکاریاں، سبزیاں۔ رواں، بہتا ہوا۔ فردوس، جنت، بہشت۔ گما، شک، شبہ، وہم۔ باغ ارم، جنت کا باغ۔
चश्मा, ज़मीन से उबलता हुआ पानी या फव्वारा। आप बच्चों इसकी तशरीह यूँ है, वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज़ उसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शायर नज़म के पहले बंद में अपने वतन की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि इस वतन में तरह तरह के खुशनुमा और खुश आवाज़ परिंदे हैं, जिनमें चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा वतन में झीलें, झरने और दरिया हैं, जिनके पानी का तरन्नुम इंसान के दिल व ज़हन को खुशी बख्शता है। वतन के सरसब्ज़ जंगल और पहाड़ भी दिल को लभाते हैं और उनके बेशुमार फ़ायदे हैं। गोया शायर कहता है कि उसका वतन बहुत खूबसूरत है, जिसको कुदरत ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है। दूसरा बंद है, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज़ बागों की पलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। इस बंद में शायर वतन में मौजूद मज़ीद नेमतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे वतन में तरह तरह के अनाज, मेवे और तरकारियाँ उगती हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं। वतन सरसब्ज़ बागों और छोटे बड़े खेतों से लहलहाता है। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। गोया मेरा वतन जन्नत की तरह खूबसूरत और हर दौलत से माला माल है। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां उसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पे गुमा। ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। आखिरी बांध में शायर वतन के पहाड़ों और जंगलों की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इनमें से हज़ारों नदी नाले और चश्मे बहते हैं। शायर कहते हैं कि मैं अपने वतन की खूबियाँ कहाँ तक बयान करूँ, यानी ये खूबियाँ इस कदर ज़्यादा हैं कि इनमें सब को बयान करने की ताकत नहीं रखता। वो मुख्तसरन अपने वतन के बारे में कहते हैं कि इसे देखकर जन्नत का गमा होता है। ये वाकई जन्नत से कम नहीं है और हर तरह की खूबियों से माला माल। सवालात और जवाबात बच्चों कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर वगैरह। दूसरा सवाल है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो इसका जवाब है दिलकश चमन वतन को कहा गया है, अपने मुल्क को कहा गया। तीसरा सवाल है फिरदौस का इस चमन पर गमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? इस मिसरे से मुराद है कि इस चमन यानी वतन को देखकर जन्नत का गमा होता है। चौथा सवाल है, इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं? जवाब है, वतन में तरह तरह के खुशनुमा और खुश आवाज़ परिंदे हैं, झीलें, झरने और दरिया हैं, सरसब्ज़ जंगल और पहाड़ हैं। वतन में तरह तरह के मेवे और तरकारियाँ पैदा होती हैं। यहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है। गोया वतन जन्नत की तरह खूबसूरत, हर दौलत से माला माल है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, जो मेरा वतन नज़म। आज हमने इस सबक का नज़म को पढ़ा, उसका ख़ुलासा पढ़ा, उसमें मुश्किल अल्फाज पढ़े और इसकी तशरीह भी की और 3-4 सवालात वहाँ जवाबात भी किए। इंशाअल्लाह अगले सबक में बाकी जो इसके सवालात व जवाबात और बाकी जो चीज़ें इंशाअल्लाह हम वो भी करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। इंशाअल्लाह अगले सबक में
اس کی دوسرے حصے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام.